Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today, the topic that we are going to take is from petroleum refining section. Today, we are going to see what do you mean by ASTM distillation. Most of you guys would be aware of कि ASTM distillation क्या है. So, आज हम लोग देखेंगे what is the importance और significance of ASTM distillation. इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है इक्विपमेंट का एंड ऑल्सो इट्स वर्किंग हाउ द एक्सपेरिमेंट इज डन. As you all know, ASTM distillation is very important for the characterization of different petroleum products. अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कैरेक्टराइजेशन के लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए ASTM distillation बहुत ही important है. आइए देखते हैं. जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, एज यू ऑल नो, पेट्रोलियम इज नॉट अ पर्टिकुलर कंपाउंड. पेट्रोलियम एक मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं. मेनली दे कंस्टिट्यूट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. 90-95% जो है कार्बन और हाइड्रोजन रहता है. उसके बाद देर आर सम इम्प्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. और ये पेट्रोलियम के अंदर से वी डिराइव डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम विच वी कॉल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था एज वेल एज टार और दूसरे हेवियर फ्रैक्शंस. सो हमारे पास जो ये पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं दे ऑल्सो कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स. लाइक उसके अंदर पैराफिन्स रहते हैं, अल्केन पैराफिन्स जिसे हम अल्केन्स भी कहते हैं, ओलिफिन्स, डाइओलिफिन्स, नेफ्थीन, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स. ये सारे कंपोनेंट्स आपके पेट्रोल, डीजल और सारे कंपोनेंट्स में रहते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस, डिपेंडिंग ऑन द प्रपोर्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, जो आपका पेट्रोल है उसकी प्रॉपर्टीज भी वेरी करती है. सो ASTM डिस्टिलेशन हमें क्या बताएगा कि आपका जो पेट्रोल है उसके अंदर लाइटर फ्रैक्शंस कितने, मिडिल डिस्टिलेट्स, मिडिल फ्रैक्शंस कितने और हेवियर फ्रैक्शंस कितने. बेस्ड ऑन द परसेंटेज एज वेल एज द बॉइलिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर कंपोनेंट्स वी कैन डिटरमाइन what would be the properties or characteristics of the petrol or gasoline that we are going to use. Now we will see the construction of ASTM distillation apparatus. I have tried to roughly sketch the ASTM distillation apparatus and now we will try to label out जो different components हैं वो क्या है उसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. This is the fuel that we are going to use for our ASTM distillation. We generally take around 100 ml of fuel. If it is gasoline या पेट्रोल रहता है, so generally that time we take around 100 ml. अगर हम लोग कोई मिडल डिस्टिलेट्स यूज कर रहे हैं, in that case, for example, अगर हम लोग डीजल का ASTM डिस्टिलेशन कर रहे हैं, we generally use around 200 ml of सैलड. ये एक हीटिंग मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग हीटिंग के नॉब को यूज करके वी कैन वेरी द रेट ऑफ हीटिंग. हीटिंग की जो इंटेंसिटी है हम उसको बढ़ा और घटा सकते हैं. हियर यू कैन सी अ थर्मोमीटर which is used to measure the temperature. A very important characteristic is that this thermometer is in this particular vapor space. ये liquid को touch नहीं कर रहे. We are actually measuring the temperature of the vapor that is produced here. So when we are heating this liquid will gradually vaporize. It will get converted to vapor and through this copper condenser tube, it will move through this particular tank which contains ice or what we can call is an ice bath, and it contains ice or you can say water at 0 degrees Celsius. So as soon as this vapor is moving from this particular space, it gets into this condenser and gradually condenses, it drops down and through this receiver it gets collected into this graduated cylinder where you can measure the quantity of your distillates. This is a simple setup or you can say a standard setup of ASTM distillation. हम लोग जब भी experiment करते हैं, this is the setup that we are using. Now coming to the working part. Now we will start the heating and we will set the heating rate at such a temperature where हमारे हीटिंग स्टार्ट करने से 5 से 10 मिनट के बाद हमें जो है यहाँ पे कंडेंसेट का फर्स्ट ड्रॉप मिलना चाहिए. सो इनिशियली कीप द हीटिंग टू बी लो एंड ग्रेजुअली हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि जो लिक्विड है वो बॉईल हो रहा है. ग्रेजुअली विल प्रोड्यूस वेपर्स एंड the condensate will flow down. We'll try to see
कि 5 से 10 मिनट के अंदर पहला जो ड्रॉप है आपका डिस्टिलेट का यहाँ पे है। नाउ द टेम्परेचर दैट इज शोन हियर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ डिस्टिलेट इज कलेक्टेड इज व्हाट इज नोन एज IBP, दैट इज इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमें हर सक्सेसिव 10 ml जो डिस्टिलेट मिलता है उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे जो है हमारा टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। सो टेम्परेचर मेजर्ड फॉर 0 IBP, आफ्टर दैट 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर when the last drop of distillate falls from here, or you can say the bottom of this particular flask gets dry, at that time the temperature that is shown here is known as FBP और आपका जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट। जो हीटिंग रेट है थ्रू आउट आपको इनिशियली आप एक बार हीटिंग रेट सेट कर देंगे। ऑलमोस्ट इट शुड बी सच दैट हर 1 मिनट के अंदर 5 ml डिस्टिलेट आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। फॉर एवरी मिनट यू विल बी गेटिंग अराउंड 5 ml ऑफ डिस्टिलेट। इस तरह से आपको अपनी हीटिंग रेट सेट करना है। व्हाट यू विल फाइंड इज शुरुआत में जो है ये टेम्परेचर के बेस पे धीरे धीरे ऑलमोस्ट सेम हीटिंग रेट पे डिस्टिलेशन विल कंटिन्यू, बट ग्रेजुअली आफ्टर अराउंड 90 और 95% ऑफ डिस्टिलेशन इज ओवर, जैसे आपने यहाँ 100 ml लिया हो यहाँ पे 90-95 ml तक आ जाता है, उसके बाद डिस्टिलेशन रेट विल स्लाइटली डिक्रीज और आपको हीटिंग रेट जो है धीरे से थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। Because now the lighter fractions have evaporated, have distilled, and now the heavier fractions are there. जिसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। You will require to increase the heating temperature, and gradually you will get the remaining portion और आपका लास्ट जो ड्रॉप आएगा यहाँ से, at that time the flask will become dry at the bottom, and you will call the temperature to be final boiling point. What you have to ensure is minimum 98% of the fuel that you have taken here has to be distilled. Minimum 98% जो है आपका यहाँ पे आना चाहिए। Simple sense, if you have taken 100 ml here, minimum 98 ml you should be receiving here. Otherwise, the quality of the fuel that you are using is not appropriate for commercial use. जो 2% के आसपास जो आपका लॉस जाए दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द लाइटर कंपोनेंट, जो वोलेटाइल फ्रैक्शंस हैं जो इवोपरेट हो जाते हैं, दे डू नॉट कंडेंस, उसकी वजह से 2% तक का वेरिएशन आ सकता है, बट स्टिल इट हैज टू बी मिनिमम 98%। जब आप लोग गैसोलीन के जगह मिडिल डिस्टिलेट्स यूज करते हैं, आई टोल्ड दैट यू कैन यूज अराउंड 200 ml ऑफ डिस्टिलेट और उसके अंदर रेट ऑफ डिस्टिलेशन इस तरह से रखना है दैट यू माइट गेट योर फर्स्ट ड्रॉप of diesel in around 10 to 15 minutes. There are slight changes for gasoline and diesel. Overall, the equipment remains the same and overall setup remains the same, and the main important characteristic is that you need to record the IBP as well as the FBP. Initial boiling point और final boiling point आपको record करना है, और हर 10 ml जब यहाँ पे डिस्टिलेट कलेक्ट होता है उस टाइम पे टेम्परेचर जो है आपको रिकॉर्ड करना है। This particular graph of temperature versus percentage distilled is what is known as the ASTM distillation curve. ये आपको आपकी फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा। IBP से 10% बॉइलिंग रेंज है, वो बहुत ज़रूरी होता है आपके कोई भी इंजन के लिए, स्टार्टअप के लिए। जब भी आप इसको ऑटोमोबाइल इंजन्स में यूज़ करते हैं, इंजन इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं, दैट टाइम IBP और जो 10% बॉइलिंग फ्रैक्शन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 30% से 60% बॉइलिंग में जो रेंज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्सेलरेशन एंड रेगुलर और स्टडी रन। आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ ASTM distillation, why it is important, the construction and the working of the equipment as well as the setup is clear to you all guys. Thank you very much.